Hello student, this is Dilip Mishra from SPIC Inter College, Gagargarh, Dhangarta, Samkali. I hope you are all good at this time and your family is also good in this pandemic time. Students, I hope that your study are going well because last 4 or 5 days you are getting your syllabus, your notes online. It's the effort of the school that your study should be continued. In this effort, today I am going to take our first lecture that is related with your English chapter, that is related with your English lecture. The chapter name is The Fun They Had. This is a story with your English book that name is Behind. Before 2 years, you have only one English book, but according to NCERT syllabus, you have two books. Your first book is English Behind, and its first lesson is The Fun They Had. Actually, this story is related with the school that will be in future, and this is a story related 2157, means after 137 years later. How will be school? Will there school building? Will there teacher? Or you have book? How will be condition of the school? How will you study? What will be situation on that time? In this lesson, we will get it. Let's start the lesson. That name is The Fun They Had. Actually, in this lesson, we have the two characters. First is Margie and second is Tommy. They are the brother and sisters. Tommy, who is brother, he is 13-year-old, while Margie is only 11. Definitely, who will have more experiences? Who will have more experiences? Definitely Tommy. And on that time, they did not know about any kinds of school which is going on at this time. They know only the mechanical teacher. Mechanical teacher means that computer. They are not introduced with the textbook. They know only the virtual classes. They have computers. They have robotic teachers. They have e-text. But they did not know copy. They did not know notes book. They did not know man teacher. They did not know school building. And they did not go to school for study because their computer are in their house. वो कंप्यूटर रखते हैं, उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो पढ़ने के लिए जाएं। उन्हें स्कूलों के बारे में नहीं पता है, स्कूल कैसे होते थे, टीचर्स कैसे होते थे, क्या आदमी कोई पढ़ा सकता है या क्या आदमी के पास इतनी नॉलेज हो सकती है कि वो आपको टीच करेगा। तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हम इस लेसन को पढ़ेंगे। स्टूडेंट, इस लेसन में हमें ये बताया गया है
कि दो कैरेक्टर हैं टॉमी और मार्जी। एक बार उन्हें एक बुक मिलती है और वो बुक उसके पेज जो है वो मुड़ चुके हैं और पल हो चुके हैं, पीले हो चुके हैं। मीन्स वो बुक काफ़ी ओल्ड है। उस बुक को पाने के बाद मार्जी टॉमी से पूछती है कि इस बुक में क्या लिखा है। टॉमी आंसर देता है कि ये बुक स्कूल के बारे में लिखी है। मार्जी एक्सप्रेसेस हर एक्सक्लेमेशन। मार्जी अपने सरप्राइज को एक्सप्रेस करती है। व्हाट स्कूल? हाउ कैन एनीबडी राइट अबाउट स्कूल? कोई भी स्कूल के बारे में कैसे लिख सकता है? बिकॉज शी हेट्स स्कूल। क्योंकि मार्जी स्कूल से नफरत करती है। मार्जी के पास आपकी तरह तो स्कूल था नहीं कि वो आकर के क्लास में बैठ करके अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ बैठ करके स्टडी करें। तो कहती स्कूल में ऐसा क्या है, कोई स्कूल के बारे में लिखेगा? टॉमी आंसर देता है, दिस इज नॉट आवर काइंड्स ऑफ स्कूल, इट इज ओल्ड काइंड्स ऑफ स्कूल। ये हमारे प्रकार का आज का स्कूल नहीं है, ये पुराने प्रकार का स्कूल है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये स्टोरी आफ्टर 137 ईयर्स लेटर, यानी 2157 की है। तो मार्जी ने पूछा टॉमी से कि ऐसा क्या है कि स्कूल के बारे में लिखा जाए। तो टॉमी ने मार्जी को बताया कि उस समय स्कूल हमारी तरह का स्कूल नहीं था, बल्कि दूसरे तरीके का स्कूल था। मार्जी उस बुक को पढ़ना चाहती है। टॉमी बताता है ये तुम्हारे लिए वेस्ट होगा, तुम इसको फेंक दोगी, तुम इसका यूज़ नहीं करोगे, तुम इसको पढ़ोगी नहीं। टॉमी कहता है मैं इसको पढ़ूंगा और मैं देखूंगा। फिर टॉमी बताता है एक बार उसके दादाजी के दादाजी ने बताया था, आफ्टर 3 जनरेशन, दादाजी के दादाजी ने बताया था कि उनके ज़माने में बुक हुआ करती थी जिस पर हम पलटते थे। पेज को पलटने के बाद वापस जाने पे वही चीज़ें कंटेंट में लिखी होती थी जो उस पर स्टेबल थी, स्टिल थी। इट विल नॉट बी चेंजेबल। वो परिवर्तनशील नहीं थी। जैसे आप देख सकते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे क्या होता है, चेंज होता रहता है, ग्राफिक्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो बुक्स है आपकी वो फिक्स है, उसी को आप पढ़ते हैं। आफ्टर 1 ईयर आपका जो जूनियर होता है वो पढ़ लेता है। वो सारी चीज़ें चेंजेबल नहीं होती। जबकि टॉमी मार्जी से जो बड़ा है वो मार्जी को समझाता है कि मार्जी हमारे तरह का स्कूल नहीं है। मार्जी अपने तभी उसकी मां आवाज़ देती है कि मार्जी आ जाओ, तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है। और टॉमी को भी पढ़ने दो, टॉमी के भी स्कूल का टाइम हो गया है। मीन्स उनकी कंप्यूटर पे बैठ करके पढ़ने का टाइम हो गया। टॉमी और मार्जी चले जाते हैं पढ़ने के लिए। कुछ दिनों के बाद मार्जी अपने परेशान रहती है, वो अच्छा परफॉर्म नहीं करती अपने कंप्यूटर पे, बिकॉज हिज मैकेनिकल टीचर वॉज गिविंग हिम टेस्ट आफ्टर टेस्ट। टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहा था, टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहा था। मैकेनिकल टीचर उसका मीन्स उसका कंप्यूटर, और उसकी प्रॉब्लम थी कि उसमें कुछ फॉल्ट आ गया था। एक्चुअली यू नो दैट कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। उसकी माँ काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती। काउंटी इंस्पेक्टर मीन्स आज की ये पुलिस थाने वाले इंस्पेक्टर नहीं। काउंटी इंस्पेक्टर मीन्स होता है निरीक्षक, हु कैन रिपेयर द कंप्यूटर। काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। काउंटी इंस्पेक्टर आकर के देखता है मार्जी एक्सेप्ट्स दैट ही विल डेफिनेटली टेक हिम रिलैक्स फॉर फ्यू डेज। मार्जी को पूरी उम्मीद थी कि अब काउंटी इंस्पेक्टर आ गया, ये कुछ दिन के लिए तो मुझे आराम दे देगा और ये इसको अपने साथ लेकर के जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। काउंटी इंस्पेक्टर कंप्यूटर को अपने साथ साइड में रखता है और उसको थोड़ी ही देर बाद रिपेयर करके दे देता है, ठीक करके दे देता है। टॉमी का कंप्यूटर जब खराब हुआ था
तो मार्जी ने देखा था कि काउंटी इंस्पेक्टर उसको अपने साथ लेकर के गया था, और ले जाने के बाद उसने उसे महीनों के बाद लौटाया था, जब उसका हिस्ट्री पोर्शन पूरा ब्लैंक हो गया था। टॉमी का कंप्यूटर फिर 1 महीने बाद रिपेयर होकर के आया था। मार्जी को यही एक्सपेक्टेशन थी कि चलो मेरा भी कंप्यूटर कुछ दिन के लिए जाएगा और मुझे रिलैक्स होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। वो तुरंत ठीक करके दे देता है, और वो उनकी माँ से कहता है कि बच्ची ठीक सीख रही है, इसके सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। निश्चित रूप से इसके सीखने की जो स्पीड है वो ठीक है। इसका जो ज्योग्राफी का पोर्शन था वो थोड़ा सा तेज हो गया था, मैंने उसको ठीक कर दिया है, अब ये ठीक तरीके से काम करेगा। हो सकता है पहले स्कूल कर लेते हैं। स्कूल करने के बाद मार्जी आती है और टॉमी से पूछती है ऐसा क्या है कि लोग स्कूल के बारे में लिखेंगे। टॉमी बताता है कि हमारे टाइप का स्कूल नहीं है, उस समय स्कूल में सभी बच्चे एक साथ जाकर के एक निश्चित टाइम पर और एक ही क्लास में बैठ के पढ़ते थे, बस वो एक सेम उम्र के। अगर उनका उम्र एक समान है तो वो एक साथ जाकर के एक ही क्लास में बैठ करके पढ़ सकते थे, जैसा कि आप लोग करते हैं इस समय। मार्जी अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखती है, उसे बड़ा गंदा लगता है, ये बड़ा सा पर्दा है, और वो उससे सबसे ज़्यादा नफरत करती है उस पार्ट से जो दराज के जैसा बना हुआ है, मीन्स कह सकते हैं हम स्कैनर की तरह है, और जिस पे उसे होमवर्क करके रखना पड़ता है। होमवर्क कंप्यूटर तुरंत उसका चेक करके दे देता है और रिजल्ट भी इमीडिएट आ जाता है, इस वजह से वो उस पार्ट से सबसे ज़्यादा नफरत करती है। ये पार्ट मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करता है। टॉमी बताता है मार्जी को कि ये शताब्दियों पहले का स्कूल है, हजारों शताब्दी पहले, जहाँ पे जब उसके दादाजी के दादाजी बच्चे थे तो जाते थे पढ़ने, और वो एक साथ बैठ कर के एक कमरे में पढ़ते थे, एक साथ खेलते थे, एक साथ कूदते थे, एक साथ उनका लंच होता था, तब सारी चीज़ें एक साथ होती थी, जैसे आप अपने स्कूल को मिस कर रहे हैं। श्योर। और उस समय जो पढ़ाते थे वो हमारे कंप्यूटर टीचर नहीं पढ़ाते थे हमको, कंप्यूटर हमारा पढ़ा रहा है। उस समय पढ़ाने वाले शिक्षक भी आदमी होते थे। इस पे मार्जी चौंक जाती है। हाउ कुड ए मैन बी स्मार्ट एट दैट कंप्यूटर? एक आदमी कंप्यूटर की तरह कैसे स्मार्ट हो सकता है? टॉमी बताता है हो सकता है, एक आदमी इतना स्मार्ट हो सकता है जितना हमारा कंप्यूटर टीचर, मैकेनिकल टीचर। और इसलिए वो फिर एग्जांपल देता है कि हमारे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना कि हमारा मैकेनिकल टीचर, और शायद उससे ज़्यादा जानते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पिताजी हमारे मैकेनिकल टीचर से ज़्यादा नॉलेज हो उनके पास। एंड यू कैन थिंक ऑल्सो दैट who is the inventor of the computer? Who is the inventor of the robotic teacher? Definitely a man. 101% a man. Computer is a creation of a man. Then who can more wise? Sure, man. वो कहती है कि मैं तो नहीं चाहती कि भाई कोई मेरे घर पे आके और स्ट्रेंजर पर्सन आकर के मुझे पढ़ाए। टॉमी फिर उसको समझाता है कि वो हमारे घर नहीं आएंगे हमको पढ़ाने के लिए, बल्कि हमें जाना पड़ता है पढ़ने के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस पर। मार्जी के स्कूल का टाइम हो जाता है, मार्जी पढ़ने जाती है, कंप्यूटर स्क्रीन उसका अपने ऑन टाइम स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट होने के बाद उस पर लिखा जाता है टुडे वी विल सॉल्व द एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। आज हम भिन्नों के जोड़ को हल करेंगे।
लेकिन मार्जी का दिमाग उस कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ न जा करके बल्कि वो उस मज़े के बारे में सोच रही होती है कि जब हम नहीं थे, हमारे पहले जैसे दादाजी के दादाजी जो थे जिन्होंने बताया था ये सारी बातों को, उस समय कि कैसे स्कूल थे, बच्चे कैसे एक साथ जाते थे, एक साथ हंसते हुए निकलते थे, एक साथ दिन को एंजॉय करते थे, एक साथ अपनी पढ़ाई को एंजॉय करते थे और करने के साथ ही साथ और फिर खत्म करते। मार्जी का सारा दिमाग इस पे लगा रहता है कि उस समय उस फंड के बारे में, द फंड दे हैड, कितना एंजॉय था उनका, उसी के बारे में वो सोचती रहती है। वह उसका कंप्यूटर जो है वो सिखाता रहता है 1/2 + 1/4 हाउ वी विल ऐड इट। इसी के साथ आपका ये लेसन समाप्त हो जाता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम लेक्चर के रूप में लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड स्टडी करेंगे और आप लोगों की एक जिम्मेदारी ये है कि आप सभी लोग जिसके डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उसको राइट कर लीजिएगा। अदरवाइज अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आपके लिए कल तक का टाइम है, आप मुझसे पर्सनल पर, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर पूछ लीजिएगा। जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड हैं सबकी मीनिंग आपको बता दी जाएगी और आप उसे अपनी नोट्स में राइट कर लीजिएगा। थैंक यू।